Hi students, welcome to Get in Bio World. Please subscribe करें, share करें और like करें. So guys, in my previous video, I already explained about kingdom Monera. Now our today's topic is kingdom Protista. A single cell eukaryotes are placed in this category, means in kingdom Protista, and Triosophites, Dinoflagellates, Euclides, and slim molds and protozoans are under these Protista categories. Kingdom Protista include Triosophites, Dinoflagellates, Euglena, slim mold, and the protozoans. All these are present in kingdom Protista. Now these member of Protista are primarily aquatic, means कैसे होते हैं ये basically live in a water. These kingdom forms are linked with other dealing with plants and animals and fungi. Kingdom Protista connect with or link with the other kingdoms, kingdom Plantae, kingdom Animalia, and the kingdom Fungi. Now being eukaryote, the Protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Means eukaryotic cell. This one is the eukaryotic cell, and this eukaryotic cell contain a well-defined nucleus. Cell में क्या होता है? एक nucleus होता है जो well-defined होता है. किसमें? Eukaryotic cell में. And it also contain other membrane-bound organelles. Some have a flagella or cilia. Protists reproduce asexually or asexually. This reproduction in kingdom Protista occur by both sexually and asexually by the process of cell fusion, and after this cell fusion cell form zygote. उसके बाद क्या होगा? Formation of zygote done. Now in our next example is Triosophites, and in this Triosophyte it includes diatom and the golden algae, and both these found in the fresh water as well as marine water. Marine means sea water, and they are microscopic and float passively in water currents. और क्या होते हैं ये? Microscopic animal होते हैं, means seen under microscope and float passively in the water current. जब ऐसे water flow होता है in this direction, then these Triosophyte means diatoms and golden algae flow opposite to the water, means water के opposite flow passively flow होते हैं. Most of them are photosynthetic, means photosynthetic means they prepare their own food with the help of the sun. In diatoms the cell wall form two thin overlapping shells. अभी diatoms में cell wall कैसे होते हैं? टू ओवरलैपिंग शेल होते हैं विच फिट टुगेदर, और जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं एज लाइक अ सोप बॉक्स. सोप बॉक्स देखा है आपने? उसका कैसे होता है? ऊपर एक कैप होता है उसके जो फिट होता है नीचे वाले बॉक्स को. Just like that soap box, the diatoms is also overlapping with each other and the walls are embedded with the silica. और उसका जो walls होते हैं सिलिका के अंदर embedded होते हैं. Embedded means fix होते हैं, and these walls are indestructible, means ये destroy नहीं हो सकते. They do not destroy. Thus diatoms have left behind large amount of the cell deposit in their habitat. That's why उसका जो habitat होता है उस जगह पर वो बहुत ज़्यादा large amount में डिपॉजिट होते रहते हैं. डिपॉजिट होना मतलब जमा हो जाते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम पासेस और बिलियंस ऑफ ईयर्स पासेस दी गेट अकुमुलेटेड ऑन देयर हैबिटेट. उसके प्लेस पर जमा हो जाते, कलेक्ट हो जाते, दे गेट अकुमुलेटेड एंड फॉर्म द डायटोमियस अर्थ. और उसके बाद क्या फॉर्म करते हैं उधर? वो डायटोमियस अर्थ. एंड बीइंग ग्रीटी दिस सॉइल, और क्या होते हैं वो? ग्रीटी होते हैं मतलब रेतीले, मीन्स जस्ट लाइक सम small stones are present in this diatomous earth, and that's why this gritty nature they are used in polishing, filtration of these oils and syrups. Next example is dinoflagellates. These dinoflagellates are mostly marine and photosynthetic, means कैसे होता है ये? found in marine means sea water, and photosynthetic means they prepare their own food. वो खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड. उसके अपीयर कैसे कलर कैसे होते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल. If their pigment color is green, that's why they appear as a green color. If their pigment color is yellow, then they appear as a yellow in color. Now next, the cell wall has a stiff cellulose plates, and inside the cell wall of the dinoflagellates stiff cellulose plates are present, and most of them have two flagella. और उनकी बॉडी में कैसे होते हैं? दो फ्लैजेले होते हैं. Very often red dinoflagellates, बहुत अक्सर रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स अंडरगो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन. अभी कुछ टाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स
का जो होता है ना वो कभी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं, दैट्स वाई दे सी अपीयर रेड इन कलर. दे प्रेजेंट इन मराइन वाटर. व्हेन दे मल्टीप्लाई इन अ लार्ज नंबर, दैट्स वाई द सी सरफेस कलर कम्प्लीटली गोज चेंजेस. उसके बाद कैसे क्या होता है, उसके सी का कलर कम्प्लीटली चेंजेस इनटू रेड इन कलर, एंड दैट्स वाई टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड मे इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस. उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होता है, टॉक्सिन अकुमुलेट होना स्टार्ट होता है, एंड द रिलीज ऑफ दिस टॉक्सिन कॉजेज द किलिंग ऑफ other marine animals. Now our next example is Euclides, and these Euclides are present in fresh water and found in stagnant water. Fresh रहना है water but stagnant जो ठहरा हुआ पानी होता है जो fresh होता है. Now instead of the cell wall they have a protein rich layer called pellicle. Pellicle means a thin layer of the protein present around the Euclides and which make their body flexible. उसके अराउंड में बॉडी में कैसे होते हैं, प्रोटीन का थिन लेयर फाउंड होती है, दैट्स वाई इट गेट फ्लेक्सिबल. नाउ दे हैव टू फ्लैजेला, ये दिख रहा है आपको ऐसे, और एक स्मॉल साइज का और एक लार्ज साइज का दो फ्लैजेले होते हैं, अ शॉर्ट वन एंड अ लॉन्ग वन. दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और जब सनलाइट रहती है तब तक वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. व्हेन डिप्राइव्ड मीन्स absence of the sunlight they behave like a heterotrophs. और उसके बाद absence के सनलाइट के absence में क्या करता है वो, behave like a heterotrophs means they depend on the other animals और other smaller organisms act as a predators के जैसे act करता है वो. एग्जाम्पल है इसका यूक्लिना. Now next topic is slime mold and they are saprophytic protist. और ये कैसे प्रोटिस्ट होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं. दी बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स engulfing organic material. They are saprophytic means they depend on the other dead or decaying animals means जो डेड हो जाते हैं एनिमल्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसका बॉडी मूव होता रहता है. इसके साथ मूव होता है अलॉन्ग विद द डिकेइंग ट्विग. जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के ट्विग्स टहनी होती है ना जो गिर जाती है, ख़राब हो जाती है, उसके साथ साथ मूव्स होता है. लीव्स होते हैं जो डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसके साथ साथ क्या होती रहती है, उनकी बॉडी मूव्स होती रहती है. एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और जो साथ में क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, बॉडी को इनगल्फ करते ऑर्गेनिक मटेरियल. अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेशन. और जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है उनकी बॉडी को तब दे फॉर्म एन एग्रीगेट, जो क्या करते कम्प्लीटली अकुमुलेट हो जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रीड ओवर सेवरल फीट. उसके बाद कम्प्लीटली एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम क्या करता है, थोड़ा सा ग्रो होता है और उसको स्प्रेड करता है, फैल जाता है सेवरल फीट तक. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है देन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट, वो अलग अलग हो जाते हैं. एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज़ बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और जो क्या करते हैं वो लोग फ्रूट टाइप्स बॉडी फॉर्म करते हैं और उसके टिप के ऊपर स्पोर्स फॉर्म होते हैं. उसके टिप्स पे क्या करते हैं, स्पोर फॉर्म होते हैं राउंडेड शेप. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोन्स. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज ए प्रीडेटर्स और अ पैरासाइट्स. सारे के सारे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, डिपेंड ऑन अदर बॉडीज़. फूड के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं. एंड लिव एज ए प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स. कितने ग्रुप्स होते हैं, देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स. ए एमेबॉइड प्रोटोजोन्स. These organisms live in fresh water. फर्स्ट ऑफ ऑल एमीबॉइड प्रोटोजोन किधर रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, और मॉइस्ट सॉइल, जो मॉइस्ट मतलब जो गीली गीली मिट्टी होती है ना, नर्म, उसमें रहते हैं वो लोग. एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. नेक्स्ट वन इज फ्लैजेलेटेड प्रेजेंट, और इट इज़ आइदर अ फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. ये क्या करते हैं, या तो फ्री रहते हैं या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड प्रोटोजोन. दे आर aquatic मीन्स लिव इन वाटर. aquatic मीन्स क्या होता है, लिव इन वाटर. एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, और बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूव होते हैं, मूव फ्रॉम हियर एंड दियर इन वाटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. इसकी बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं. सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द सेल ऑफ द सेल सरफेस. सेल सरफेस के अतराफ में क्या होते हैं, इसके सीलिया होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ द सीलिया. दैट्स वाई इट इज़ एक्टिवली मूव in water.
Example is paramecium. Now sporozoans, next is sporozoans include diverse organisms, और इसके अंदर diverse मतलब variety of the organisms are present in sporozoans that have an infectious spores like stage, और इसका एक लाइफ की साइकिल के टाइम पर एक ऐसा स्टेज आती है जो कैसी होती है, स्पोर लाइक, इन्फेक्टियस स्पोर लाइक, जिससे इन्फेक्शन होता है दूसरों को. द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियस. नोटोरियस मीन्स पॉपुलर, मेनली जो पॉपुलर प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट होता है विच कॉजेस मलेरिया, है ना, मलेरिया पता है हमको, ये नोटोरियस है, हम सब जानते हैं इसे. हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन के बॉडी पर बहुत ज़्यादा डेंजर अफेक्ट डालता है.